Okay, students, today I am going to say about the graphical representation of displacement, velocity and acceleration. The object in क्या कर रहे हैं, आज आपको बताएंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखाएंगे, उसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तीनों एक एक टाइम. ओके, then let us start from the given thing what we have already known. We have already known that displacement, I will clarify it. Suppose here bob is here and this one object is here, then the motion will be like this, like this, like this. Okay, then this motion, this type of motion is known as simple harmonic motion. Here there is a fixed support S, this one is bob. Okay, this one is these are the positions of bob, and here this is the mean position, this A is extreme position, this B is extreme position. It is oscillating like this. Then the at any instant the position of the bob, let us say at any time t, if this object was here p, then this distance, this displacement is known as phi. Okay, then we have already derived what, phi equal to a sin omega t. In previous class I have already explained it. Then here we are going to show graphical representation. Then for drawing a graph, what do you do? We take some points on x-axis and then its respective value on y-axis. Okay, then here we try to find out the points on x-axis. Let us say this point, we are going to take time period on x-axis. It means we are going to draw the graph of displacement or velocity or acceleration with respect to time. It means we will take time period on x-axis, and another things, displacement will be on y-axis, then again velocity will be on y-axis, then acceleration will be on y-axis. We will draw 3 graphs. Okay, now it is already clear to for drawing a graph what we do. एक ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर कुछ लेते हैं, है ना, कोई पैरामीटर लेते हैं, और कुछ पैरामीटर क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पर लेते हैं ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, टाइम पीरियड. ओके, तो टाइम पीरियड हम लोग क्या लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, टी है, टी को हम लोग टाइम पीरियड कहें. टाइम पीरियड क्या बताए थे कि हमारा जो एक वेव इस तरह का बनता है ऐसे, दिस वन इज सेट टू बी वन साइकिल, इसको हम लोग वन साइकिल कहते हैं. टाइम टेकन इन दिस वन इज नोन एज टाइम. तो इसको हम पार्ट में बांट लें, 4 पार्ट में. तो जैसे इसको क्या ले लें, टोटल है टी, ये हमारा एक यहाँ, एक यहाँ, और here this is 0, then say this is this time to be what, t by 4, then this to be 2t by 4. Okay, then this time to be 3t by 4, and now this time is what, 4t by 4, है ना. ऐसा टाइम पीरियड हम क्या क्या ले रहे हैं, t by 4 and 0 here
This is we are any for any graphical representation we start from 0 0. Then first time period is 0. It means it is now going to start the motion. Which type of motion? Simple harmonic motion. तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या लेंगे 0. देन सेकंड टाइम क्या ले रहे हैं यहाँ पर t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4. Now it is clear to you. The first parameter that is on the parameter which will be on x-axis. That is what? Time period. Okay. Now what we know? This one is, I have told you that this one is rotating with angular speed. Omega is here what? Omega is angular speed, angular velocity. Okay. And this is defined by what? आपका एक रोटेशन में कितना टाइम 2 पाई एंड टोटल टाइम पीरियड इन वन साइकिल इज व्हाट? दैट इज t. देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t. वी हैव ऑलरेडी I have already explained in previous videos. Okay, just previous. Then omega is 2 pi by t. It is clear to you. This is time at any instant. It will be kept t equal to 0, t equal to t/4, t equal to 2t/4. Okay, like this. तो आपका ये t क्या हो गया? इंस्टेंट टाइम. किस समय ले रहे हैं? एक बार यहाँ लेंगे 0 पर, यहाँ लेंगे t/4, यहाँ 2t/4, यहाँ 3t/4, यहाँ 4t/4, 4t/4. समझ गए? यहाँ से यहाँ 0 टाइम, फिर यहाँ आ गया तो कितना t/4. पूरा टाइम t है, 4 भाग में बांट दिए t/4, t/4, t/4. तो यहाँ से यहाँ t/4, फिर यहाँ से यहाँ t/4 कितना हो गया 2t/4, फिर यहाँ से यहाँ t/4 तो कितना हो गया 3t/4, फिर यहाँ से यहाँ 4t/4. ओके, I is clear to you. Here t is clear to you. T will be taken like this. Omega is angular velocity. That is what? It is rotating like this. This is the angular velocity. Then in full cycle the time the angle will be 2 pi. कितना 360 डिग्री होता है ना इसे. That is 2 pi. और वन साइकिल कंप्लीट साइकिल में जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल T. ओमेगा इज क्लियर है. ओमेगा इक्वल टू 2 pi by 2. क्लियर हो गया आपका. नाउ जस्ट स्टार्ट. ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम y equal to s sin omega t, and our aim is to get the value of at first displacement, then after what? Velocity, and lastly acceleration. Okay. Then now let us see here. When we give at first, and we divide time in half, t equal to 0. Okay, first time कहाँ लेंगे? t equal to 0. When it is at mean position, here it is, here object is here, then here t equal to 0. When it comes here extreme position, then here time taken is t is equal to what? t/4. पूरे टाइम का कितना? 1/4. फिर यहाँ से यहाँ लौटा, कितना टाइम हो गया? t/4. तो t/4 कितना हो गया? 2t/4. ओके, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये आपका यहाँ गया, तो यहाँ फिर लगा आपका टाइम कितना? t/4. तो कितना हो गया? 3t/4. और फिर यहाँ से यहाँ फिर आया लौट के, यहाँ से यहाँ तो कितना हो गया? ये 4t/4. तो वी हैव नाउ टाइम इक्वल टू t इक्वल टू फर्स्ट टाइम t इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू, इट इज फ्रॉम हेयर, it is from t equal to 0, t equal to t/4, t equal to t/4. Next time will be t equal to 2t/4. Then next time it will be t equal to 3t/4, and lastly t equal to 4t/4. Okay. Now just try to get the values.
by from this equation 1. Okay, what we get? Y equal to when t equal to 0. Okay, we are taking first case when t equal to 0. Then y equal to a sin omega. Omega means 2 pi by t, and t is what? That is 0. Okay, then now this becomes a sin whole is 0. Then we know a sin 0 is equal to what? That is 0. That means 0. Now let us draw the point. Try to get the points. Okay. Here we are taking time period, and here displacement. Okay, that is what? That is 5. Then for t equal to 0, time is 0. Then what is by the value of y? Y is 0. Okay, now let us take this value t by 4. What will be the value of y? Okay, now when t equal to what? T by 4. Okay, then y is equal to a sin omega equal to 2 pi by t, and now t equal to sin omega t. Okay, in place of t, what is there available here? T by 4. Cancel it out. Then this becomes a sin pi by 2. A sin pi by 2 means sin 90 degree. That is what? 1. Then this value is a. Then this value is a. Okay. Now second value 2t by 4. Okay. Then for this value, then y equal to what? A sin omega equal to 2 pi by t, and what we have taken? T equal to a ले चुके, अब ये ले रहे हैं, है ना? Then t equal to 2t by 4. This value, then t cancels out. 2 2 ja 4, 2 2 ja 10. Then this becomes a sin pi. That is a sin pi means 180 degree. The value of 180 is 0. That is 0. Then this becomes 0. Okay. Now t equal to, we have taken these three values. Now 3t by 4. Then here t 3t by 4. Okay. Then what will be the value of y? Y is what? Y is equal to a sin omega equal to 2 pi by t. And now what we have taken? 3t by 4. 3t by 4. Now let us cancel out, and this is, then what is the value of here? A sin 3 pi by 2. 3 pi by 2 कितना हो गया? 270 डिग्री. 270 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है? 1. Then this is a into 1. और a 270 आपका कौन में हो गया? यहाँ से देखिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री.
किस क्वाड्रेंट में आ गया? इसमें, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है? साइन थीटा माइनस होता है, तो ये कितना हो गया? -1, दैट इज माइनस। ओके, देन दिस वैल्यू इज, है ना, क्लियर है ना? साइन 270 डिग्री का देख लीजिए, -1, देन दिस वैल्यू इज -1, दैट इज। नाउ we have recorded this value. Now come at final value, this 4t by 4. Then what will be the value? What we have taken? T equal to 4t by 4. Then y is equal to a sine 2 pi by t into 4t by 4. This one is cancelled, this is cancelled, then this is what? A sin 2 pi. 2 pi क्या हो गया? 360 डिग्री। फिर से यहीं पर 0 पर 360 मतलब क्या? हाँ, यहाँ फिर 0 पर आ गया, तो साइन 0 मतलब क्या होता है? 0। देन दिस वैल्यू इज 0। ओके, नाउ you have seen this thing, then these are the values for what? For displacement. Now we try to find out the value of velocity. Then when we dv by dt is equal to what? That is dy by dt. Okay, and this is what? Differentiation of dt. I have already explained yesterday, है ना, in last video. Then this is y equal to what? A sin omega t. This is just repetition. Then this is a dy dt of sin omega t. Then this will be what? A d sin omega t with respect to d omega t, and this is d omega t by dt. Then this is what? This is a differentiation of sin omega t will be cos omega t. Okay, and this is d omega t with respect to dt will be omega. Then this is omega a cos omega. Okay, this is the value of v. Okay, now let us write down. Finally, v equal to what? That is v equal to and a omega a cos omega. Okay, now as previous case, जैसे हम लोग पहले वो निकाले थे क्या? 0 पर, t पर, पाई बाई 4 पर है। ओके, देन एट, अब ले लें यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, अब वेलोसिटी पर आ गए, यहाँ जाए वेलोसिटी, दैट इज व्हाट? ये का ग्राफ ड्रॉ करें। ओके, देन एट फर्स्ट t equal to 0, at t equal to 0, d is equal to omega a cos omega into 0, t equal to 0. Then this is what? Omega a cos 0. Okay, and already you know value of cos 0 is what? That is 1. 0 पर cos का वैल्यू 1 होता है और 90 पर क्या होता है वैल्यू? 0. Then this is what? Omega. When t equal to 0, value velocity is what? Omega. Here value is, okay. Now let us write when t is equal to a वैल्यू ले लिए, अब ये ले लें t by 4, the v becomes omega a cos omega means what? 2 pi by t. This is omega and t equal to what? t by, okay, and t cancel off to
2 is 4. Then this becomes omega a cos pi by 2. Omega a, and you know cos pi by 2 equal to 0. That is okay. Then here this value is 0. Already we have सब तो आप सीख ही गए, अब खाली वैल्यू भर के दिखा देते हैं आपको, है ना। देन फाइनली आपको ग्राफ थोड़ा सा समझाएं, तो ये तो आप लगभग समझ चुके हैं। नाउ सिमिलरली व्हेन t इक्वल टू हाउ मच, ये दोनों हो गया, ये हो गया। अब यहाँ t इक्वल टू 2ty, देन t इक्वल टू व्हाट, t इक्वल टू ओमेगा a cos omega equal to 2 pi by t, and t is equal to 2ty. Okay, then this t 2 into 2 into 2 cancels out, t cancels out. Then here only left one is cos pi, omega a cos pi. Pi means 180 degree, and we know that 180 degree cos pi, cos 180 degree equal to what? -1 omega a, that is -1. Okay, that is minus omega. Okay, this one is minus omega. Now two values are left. Okay, then let us take here t equal to how much, t equal to 2t by 4 हो गया, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब ये ले लें 3t by 4. Okay, then v equal to omega a cos 2 pi by t, and t equal to 3t by 4. Okay, then this cancels out, this is 2, then this becomes omega a cos 3 pi by 2. Okay, 3 pi by 2 मतलब कितना हो गया, 3 गुने 180 बटा, ये हो गया 270। 270 डिग्री कहाँ है आपका, देखिए यहाँ से 90, 180, 230। यहाँ वैल्यू आपका क्या आया था, यहाँ वैल्यू कॉस का 0 पर 1, 90 पर 0, माइनस 180 पर -1, और यहाँ अगेन क्या होगा -0, दैट मीन्स 0। when this is what, omega a into -0, that means -0 और 0 लिखिए, that is again 0. Okay, now finally we try to get the value of at what, full time इस पर 4t by 4, when equal to 4t by, okay, this यहाँ तक आप लास्ट पर आ गए, तो देखिए इक्वल टू ओमेगा a cos 2 pi by t, and this one is t is equal to 4t by 4. This cancels out, then this is omega a cos 2 pi. Cos 2 pi मतलब 360, cos 2 pi मतलब again here this value was na how much, this was value cos 0 means 1, then this is omega a into 1, that is omega, this value is omega. Okay, then what we observe, we have now there is no need of observing at first. Again try to find out the value of acceleration, then as a whole we will discuss, है ना। क्या करते हैं हम लोग, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लिए, यू कैन से दिस टू बी ए सिंपल चार्ट। तो ये हम टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लिए, टाइम के साथ वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लिए, और अब क्या करेंगे, चलिए आउट ऑफ टाइम का ये वैल्यू आप किसका निकालेंगे, एक्सेलरेशन है ना। अब देखिए देन व्हाट वी हैव ऑब्टेन,
एक्सेलरेशन इक्वल टू F was omega square y. Okay, omega square y. Then here you can direct, यहाँ माइनस है रखिए, ये कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर है, आई हैव टेकन हेयर, फिर यहाँ जीरो तो जीरो, क्लियर हो गया। तो व्हाट वी हैव डन नाउ, हम लोग क्या किए कि एक हमको चार्ट मिल गया, चार्ट में हम लोग क्या व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग है, नाउ कम है, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, वी हैव द रिलेटिव वैल्यू of displacement, velocity and acceleration with respect to what, time। हम लोग हम क्या बताए थे आपको कि टाइम को हमको x एक्सिस पर लेना है और y एक्सिस एक बार क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट। तीन ग्राफ खींचेंगे, डिस्प्लेसमेंट का अलग, वेलोसिटी का अलग और एक्सेलरेशन का अलग, लेकिन सबको एक ही एक्सिस पर, एक ही साथ। एक्सिस मतलब सबका y रहेगा, सबका x रहेगा, लेकिन एक ही साथ कंपेरेटिव दिखाते हैं आपको करके। तो हम लोग क्या किए, t का अलग अलग वैल्यू ले लिए, इसको क्या लेंगे x एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लिए, वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लिए, एक्सेलरेशन का। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब देखिए क्या करते हैं कि हम लोग सबका वैल्यू एक जगह लेते हैं, आराम आराम से समझिए। Suppose this is the graph, we have taken this to be x-axis and this is our y-axis. Okay, then this one is graph for displacement। हम क्या चाह रहे हैं, इस जगह डिस्प्लेसमेंट का, इधर क्या है, ये हम लेने जा रहे हैं, ये एक्सिस को दिखा रहा है ना, ये एक्सिस है आपका, कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। यहाँ आपका माइनस में हम लोग लिए नहीं है, इसलिए इस साइड जरूरत पड़ेगा नहीं, ये आपका वो हो गया। तो हम क्या खींचने जा रहे हैं, इधर लेने जा रहे हैं, किस चीज को, डिस्प्लेसमेंट। हियर द पैरामीटर इज, दिस वन इज नोन एज पैरामीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। इसका पैरामीटर क्या है, टाइम है ना, इधर एक्स एक्सिस पर टाइम, इधर क्या ले रहे हैं, पैरामीटर ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट पार्ट। तो अब देखिए, आइए क्लियर हो गया। अब हम ले लें ऐसे, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, यहाँ कर दे, क्या कर दे, कैसे कैसे लिए थे, t/4, यहाँ क्या लिए थे, 2t/4, और यू कैन से 2t/4 मीन्स व्हाट, 5t/2, यू कैन से हियर t/2, यहाँ हम क्या लिए थे, 3t/4, ये हो गया आपका 3t/4, और ये हो गया क्या लिए थे, 4t/4, दैट मीन्स हेयर, ये आपका 5 4, ये एक तो जीरो हो गया, 4 ये लिए हैं, 0t/4, ये हो गया आपका 2t, ऐसा ही लिख देते हैं आपको, 2t/4, 3t/4, इसको भी लिख देते हैं 4t/4, जैसे आप समझिए, ठीक है। नाउ आपका क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या ले लिए, ये भी दिखा दिए, टाइम भी दिखा दिए। अब हमको ड्रॉ क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो पर कितना है, जीरो, यहाँ क्या जानते हैं हम लोग, कैसा फंक्शन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फॉलो करता है, किसको, साइन थीटा को या कोस थीटा, है ना। तो ये हमारा जानते हैं कि साइनसोइडल होता है। तो देखिए पहले, तो हेयर वैल्यू इज अगेन जीरो, जीरो पर जीरो, t/4 पर a, मान लीजिए हमारा मैग्नीट्यूड कितना a है, क्या एक मैक्सिमम होता है, y इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, y मैक्स इक्वल टू a, तो ये यहाँ है, तो ये कहाँ आ गया, मिल गया हमको यहाँ, ठीक है, t/4 पर ये वैल्यू यहाँ मिल गया, ऐसे ऐसे
ये मिल गया ये। अब टू टी बाई फोर पर कितना मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। देखिए पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, यहाँ है, यहाँ तक आ गए। थ्री टी बाई फोर पर कितना आ रहा है, माइनस है, तो ए यहाँ हम लिए हैं, माइनस यहाँ ले लें, माइनस है, तो ये कहाँ पर मिल रहा है, माइनस है। ये आप आ जाइए, ये आ जाइए यहाँ पर, तो ये आपका नेक्स्ट वैल्यू कहाँ मिल रहा है, ठीक है, ए वाला पर है ना, थ्री टी बाई फोर है ना, ये वैल्यू यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू कहाँ है, जीरो, इस पर 4t/4 पर कहाँ वैल्यू है, जीरो। अब नाउ लेट अस जॉइन इट। Okay, then what we are getting, finally what we are getting, we have, okay, this is the graph of sin theta. When you go onward it will show like this. आपके सामने ड्रॉ कर दिया, समझ गए, खींचना समझ गए। नाउ कम एट वेलोसिटी, ये तो हम ले ली, यहाँ तक आपका काम हो गया। अब देखिए इसमें, अब आ जाए हम इसमें, आ जाए वेलोसिटी, टाइम वही रखें। देखिए आपको टाइम यहाँ दिखा भी देते हैं, यही टाइम ले रहे हैं, टाइम इज सेम। ठीक है, ओके। अब टाइम यही ले लिया, क्या टाइम है आपका, ये है आपका t/4, 2t/4 और ये 3t/4 और ये 4t/4 है ना। टाइम ये ले लिए, ये आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड, टाइम एक्स एक्सिस हो गया। क्या बताए थे आपको, टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे और वेलोसिटी को इस पर। अब इस बार क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर, इस बार पिछले बार डिस्प्लेसमेंट लिए था, वेलोसिटी दिखा। अब वैल्यू आइए, हम वैल्यू कह दे वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू है मान लीजिए ओमेगा, और यहाँ पर इसका ठीक उल्टा, यहाँ पर वैल्यू है माइनस ओमेगा, है ना। यहाँ हमारा पूरा ग्राफ में क्या है, ओमेगा ए माइनस ओमेगा ए जीरो। तो हम लोग ये वैल्यू ले लियो ओमेगा ए, माइनस ओमेगा। अब यहाँ से व्हेन टाइम पीरियड इज जीरो, जीरो है, तो आपका वेलोसिटी कितना है, ओमेगा, आपका यहाँ पर है। समझिए इस चीज को, जीरो टाइम पीरियड पर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, यहाँ पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ हो गया। अब आइए सेकंड पॉइंट पर, t/4 ये हो गया। इस जगह वेलोसिटी कितना है, जीरो है, तो t/4 पर वेलोसिटी कहाँ हो गया, यहाँ जीरो हो गया। अब आइए 2t/4 पर माइनस ओमेगा है, 2t/4 पर माइनस ओमेगा है, कहाँ, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आ गया, ये आ गया, है ना। फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट 3t/4, 3t/4 कहाँ है, यहाँ, यहाँ पर क्या है वैल्यू, जीरो है, यहाँ पर आ गया जीरो, 3t/4 यहाँ आ गया आपका जीरो, है ना, ये जीरो आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, 4t/4 पर ओमेगा है, ओमेगा है कौन सा है, ये वाला, फिर यहाँ आ गया। So we have now again 5 points here, 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 and here. Okay, again we have 5 points. Now let us join it. Then this shows like this. Okay. तो देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा बस, ये जो है डिस्प्लेसमेंट का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वैल्यू, टाइम पीरियड जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जब टाइम पीरियड जीरो है तो हमारा वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है इसमें।
और वो कैसा वैल्यू है, मैक्सिमम। क्या बताए थे कि जब हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, टाइम पीरियड क्या है, 0 यहाँ था, t/4 यहाँ, तो यहाँ रहेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर, यहाँ से ये आपका वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम था, यहाँ पर आके वेलोसिटी